हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एग्जामिनेशन अब शुरू होने वाला है, तो मैं अब और कुछ टिप्स के साथ आज आया हूँ। तो मैं आज चैप्टर 1 रियल नंबर्स क्लास 10th के फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक थ्योरम 1.3 के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, सो बी केयरफुल और आप मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनिए और समझिए भी। सो थ्योरम 1.3 known as fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic. What is the statement of the theorem? Statement है every composite number can be expressed as a product of primes. Every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. Okay, so this is the statement, fundamental theorem of arithmetic. The statement tells that every composite number can be expressed as a product of primes. So before expressing this statement, I am just going to clear composite number and prime number, right? Composite number means a number having more than two factors. A number having more than two factors. This is known as what? A number having more than two factors. Composite number. So examples: 4 is the smallest composite number. Its factors are 1, 2 and 4. So more than 2, right? So this is a composite number. 4, 6, 8, 9, 10. Examples और भी है, मैं बताता हूँ. 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15 and so on. Infinite composite numbers are there, but 4 is the smallest composite number. Okay. Then prime number, a number having only two factors, that is 1 and the number itself. Examples: example 2 is the even prime number. It is the known as even prime number. Then 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 and so on. So these are the prime numbers. Now come to the statement here. So
ओके, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को एक्सप्रेस करने से पहले आपको ये दो टर्म के बारे में पता होना चाहिए, राइट। सो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एग्जाम्पल में ले रहा हूं, सपोज आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल, example is suppose 36. Okay, so first what is saying, every composite number can be expressed as a product of primes. So इसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, 218, 29, 33, 31, राइट। इसी मेथड से भी आप फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टराइज प्राइम फैक्टर्स का फाइंड आउट कर सकते हैं, और यूजिंग फैक्टर ट्री आल्सो, जो हमारा बुक में दिया गया फैक्टर ट्री अच्छा होता है। सो 218, 29, 33, okay. So 36 is written as, look at here, very careful, 36 is written as 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3. Okay, now look very careful, looking here, look at here, every composite number can be expressed as a product of primes. जितना कंपोजिट नंबर से वो कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सो देखिए 36 एक कंपोजिट नंबर, मैंने इसको प्राइम नंबर्स में क्या कर दिया, प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर दिया। 36 इज रिटन एज 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3, राइट। नाउ लुक एट हियर, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। बोले कि वो जो फैक्टराइजेशन 36 इज एक्सप्रेस्ड as the product of primes, means prime numbers 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs. वो कह रहा है कि चाहे जिसे मर्जी इसका ऑर्डर में आप लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स को। एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूं 2 multiply 3 multiply 2 multiply 3, देखिए ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया, या ऐसे लिख सकता हूं 3 multiply 2 multiply 2 multiply 3, या ऐसे भी लिख सकते हैं 3 multiply 3 multiply 2 multiply 2, या 2 multiply 3 multiply 3 multiply 2, चाहे कैसे मर्जी ऑर्डर में आप लिखिए, आप इसका प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, लास्ट में 36 मिलते हैं। सो दिस इज नोन एज व्हाट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, राइट स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। और एक बार मैं बता रहा हूं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये जितना कंपोजिट नंबर है आपके सामने है, ये कि 36 मैंने लिया एग्जांपल है कि कंपोजिट नंबर, उसको हमें कैसे लिखते हैं, एक्सप्रेस किया मैंने किसी हिसाब से यूजिंग फैक्टर ट्री और सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड, दोनों में से किसी एक में से, दोनों यूज करो आप। वैसे ही आप यदि फैक्टर ट्री को यूज करोगे तो अच्छा होता है ये। ओके, सो 36 एक कंपोजिट नंबर, उसको मैंने एक्सप्रेस किया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में, 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3। वो फिर बोल रहे हैं कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, बोले कि जो फैक्टराइजेशन है ना यूनिक होगा, मींस इट्स प्रोडक्ट बिकम्स 36 इन एवरी केसेस, व्हाट, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन व्हिच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स। दैट मींस चाहे जैसे मर्जी आप इसका ऑर्डर में आप लिख सकते हैं, इसको ऑर्डर जैसे 2 multiply 2 3 multiply 3 ऐसे भी लिखा गया। सेकंड में मैंने 2 multiply 3 ऑर्डर चेंज कर दिया, 3 को सेकंड में लिखा और सेकंड 2 को थर्ड पोजीशन में लिखा। तो जैसे आप ऑर्डर में चेंज कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में प्रोडक्ट क्या आता है, 36 आता है। उम्मीद करता हूं आप थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अच्छा से समझ आया होगा आप लोगों को बच्चे। उसके बाद इसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को यूज करके हमें क्या करेंगे, एक प्राइम जैसे एक्सप्रेस each number as a product of prime factors। एक नंबर्स लेते हैं 156, क्वेश्चन में बताता हूं, एक्सप्रेस 156 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सो वेरी सिंपल थिंग्स, 156 मैंने आपको बताया था, आइदर यूज सिंपल मेथड फैक्टराइजेशन मेथड और फैक्टर ट्री। सो 2 7 jar 14, 1 carry, 16 2 8 jar 2 3 6 9 3 13,
13 1 या यूजिंग फैक्टरिटी 156, फैक्टरिटी यूज कीजिए 278 239 देन 313, ओके ऐसे भी आप लिख सकते हैं. सो 156 इज रिटन एज 2 multiply 2 multiply 3 multiply 13, that means 2 square 3 1 13 power 1. Remember that always retain the prime factors in the power notation. पावर नोटेशन के हिसाब से आप लिखिए इसको, ओके. चाहे ऑर्डर जैसे भी लिख सकते हैं, 3 को 1 पहले स्टेप में भी ले आ सकते हैं, 2 का स्क्वायर 13 को 1, नो मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. सो एक्सप्रेस 156 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. इसमें से के मैंने बताता हूं कि सपोज समटाइम्स 78 इज नॉट गिवन, सपोज इन प्लेस ऑफ 780 इट इज x. एक नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है आपको एमसीक्यूज में, ओके. देयर आर 20 एमसीक्यूज कमिंग, ओके, कम इन दिस एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन. सो यहां पर मिसिंग नंबर भी आ सकता है, तो आप क्या करेंगे इस केस में, यू डिवाइड 156 बाई 2. सो इट इज व्हाट, 2 7 जार 14, 1 and 6, 2 8 जार 16. सो इट इज 78. तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग नंबर यहां पर क्या होगा, 78. कहीं पर भी आ सकता है, राइट. यहां पर भी y आ सकता है सपोज, एंड y. तो आप क्या करेंगे, 39 को 13 के साथ डिवाइड करेंगे, 13 3 जार 39, इट इज 0. सो 3 आप लिख सकते हैं, y वहां पर क्या हो गया, 3 हो गया, ओके स्टूडेंट्स. तो आशा करता हूं आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आ सकते हैं, ओके. उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. स्टूडेंट्स, यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, आई एम गोइंग टू डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस which is perhaps it will come in the examination, this type of questions. Check whether 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. इसको हमें चेक करना है कि क्या 6 रेस्ट टू द पावर n, n एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक है, कोई एक नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है. कि क्या 6 रेस्ट टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, क्या ये हो सकता है. एग्जाम्पल करते हैं, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं. n इज ए नेचुरल नंबर, n मीन्स पॉजिटिवली 1 2 3 व्हाटएवर में भी इन्फिनिट तक जाएगा. 6 पावर n for n is equal to 1, tell me 6 raised to the power 1, it is 6. So 6 power 1 end with the digit what, 6. Then for n is equal to 2, 6 raised to the power 2, it is what, 36. So 6 raised to the power 2 end with the digit 6. Similarly for n is equal to 3, 6 power what, 3, 216. ओके. सो ये भी 6 पावर 3 भी किस डिजिट में एंड होता है, 6 में एंड होता है, यानी बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ओके. यदि हमें n का वैल्यू एक पॉजिटिवली एक नेचुरल नंबर लेके हमें टेस्ट करते हैं, तो वी गेट दैट 6 पावर n एंड विद द डिजिट 6. बट यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो मैंने अभी डिस्कस किया था कुछ देर पहले, उसको यूज करके हमें प्रूव करेंगे कि क्या 6 पावर रेस्ट टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, राइट. तो ध्यान से आप समझिए. तो इसी में बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लेना पड़ेगा. मैंने पिछले बार भी बताया था जब रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर को प्रूव कराया था, ठीक है ना स्टूडेंट्स. सो तो यहां पर तो हमें पता चल गया भाई एक्सपेरिमेंटली, यानी मैंने यहां पर प्रूफ कराया n का वैल्यू 1 2 3 लेके, ठीक है, कि हमें 6 रेस्ट टू द पावर n पॉजिटिवली एंड विद द डिजिट 6. बट बाय द मेथड यूजिंग द थ्योरम 1.3 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि क्या 6 रेस्ट टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. तो हम यहां पर मानेंगे यस कि लेट अस अज्यूम दैट. तो लेट वी राइट हियर, लेट 6 रेस्ट टू द पावर n can end
with the digit 0 for any natural number n. ओके, ये n यहां पर एक नेचुरल नंबर है। वैसे तो हमें पता चला, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि 6 पावर n यानी n एक नेचुरल नंबर यदि होगा तो पॉजिटिवली 6 में एंड होता है, वट एवर मे बी इट्स वैल्यूज, राइट। बट हमें अभी प्रूव करेंगे यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो लेट मैंने लिखूंगा कि लेट 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। चलो अभी बात करते हैं, यदि एक नंबर 0 में एंड होता है तो आप बताइए, एग्जांपल सपोज 20 0 में एंड होगा तो क्या क्या फैक्टर्स इसका बनेंगे, क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके? 2 भी बन सकता है, 5 भी बन सकता है, और क्या बनेगा? 10 बनता है। तो 10 तो कंपोजिट नंबर, इसको कैंसिल कर दीजिए। सो 2 भी फैक्टर बनेगा और क्या बनेगा? 5 बनेगा। क्योंकि वो कह रहे हैं, आप बोलोगे सर अब 10 क्यों नहीं लेंगे, क्यों हम नहीं लेते 10? क्योंकि 10 एक कंपोजिट नंबर, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सो मैंने यहां पर लिख रहा हूं, सो एज अकॉर्डिंग टू assumptions, यानी लेट 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, तो मैंने इसमें लिखूंगा तो सो दैट इंप्लाइज 2, 5 और 10 आर द factors of 6 power n. Okay, as 10 is a composite number, तो 10 क्या है कि बेटे कंपोजिट नंबर है। सो हम क्या इसको कैंसिल कर देंगे। क्यों कैंसिल करेंगे? क्योंकि कंपोजिट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी 10 को भी हमें प्राइम फैक्टर्स में भी कन्वर्ट कर देंगे। 2 × 5 तो 2 भी आता है और क्या आता है? 5 आता है। तो इसीलिए मैंने लिखूंगा कि यहां पर सो दैट इंप्लाइज 2 और 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 6 पावर n। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, 2 और 5 क्या हो गया? 0, 6 पावर n का फैक्टर्स हो गया। 2 एंड लिख लेते हैं, हम तो श्योर हो गए, राइट। बट लुक एट हियर, 6 पावर n, that means 6 is a composite number, so it is written as 2 × 3 power n raised to the power n. So that is 2 raised to the power n into 3 raised to the power n. So 6 power n can be expressed here 2 raised to the power n and 3 raised to the power n. Here 2 and 3 are prime numbers. So what you conclude here? So that implies 2 and 3 are factors of 6 power n. But students, what about 5? अब 5 का क्या होगा? हम लेट से लिए थे तो 2, 5 बनता था 6 पावर n का प्राइम फैक्टर्स, बट एक्चुअली कैलकुलेशन जो हम किए, एज 6 इज ए कंपोजिट नंबर्स, 6 कैन बी एक्सप्रेस्ड 2 × 3 for 2 × 3 raised to the power n. That means it is 2 raised to the power n multiply 3 raised to the power n. So that implies 2 and 3 are factors of 6 power n. Okay, क्लियर हो गया? तो इसका मतलब जो लेट लिए थे वो गलत है कि नहीं? क्योंकि मैं लिखूंगा एज द यूनिक्यूनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक guarantees that there are no other primes in the factorization of 6 raised to the power n. देखिए ये चीज को आप पढ़िए,
वो बोल रहा है कि पहले हमें लेट लेके प्रूव कर दिए कि 2 and 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 6 पावर n, बट एक्चुअल कैलकुलेशन से आज 6 इज ए कंपोजिट नंबर, हमें पता चला 2 and 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 2 and 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 6 पावर n। क्यों है वही चीज लिखा गया कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है, गारंटी देता है कि there are no other primes in the factorization of what 6 power n, so it contradicts our assumption that 5 is a factor of 6 power n। ये कंट्राडिक्ट करता है कि 6 पावर n का एक फैक्टर है, सो दैट इंप्लाइज 6 पावर n cannot end with the digit 0 for any natural number n, hence checked। सो 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। कब 6 के ऊपर 8 भी आ सकता है, 4 पावर n भी आ सकता है, 12 पावर n भी आ सकता है, 18 पावर n भी आ सकता है। 6 के ऊपर हम क्या, इसके ऊपर ऐसे भी आ सकता है 4 raised to the power n, 8 raised to the power n, देन 12 raised to the power n, 18 raised to the power n, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, 4 पावर n तो एग्जांपल्स में है एनसीईआरटी बुक के। तो स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, आशा करता हूं आप लोगों को समझ आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।